Okay, hello, hi, and assalamu alaikum, everybody. How are you? All right. Hope you have been really doing well and enjoying your life that you are living. First of all, I would be really thankful and really pleased to have you here on this Saturday. And the very first thing that, as you all know, you're familiar that every Saturday, we and our dear staff and Honorable MD and the Director, Sir Arif Bakht, and the respectable Sir Bilal, who arrange sort of things for you guys, sort of motivational and inspirational things. And I think it's not the first time you guys have really observed and experienced these kind of activities here at TKC, right? So the very first thing that I would say, that the respectable MD and the director of all this organization, this brand, Sir Arif, will be really grateful to him for giving us, for arranging sort of opportunities and events and ceremonies and all these programs that are for your betterment and for your improvement, right? So we are highly grateful to him. And secondly, I would be really grateful and I would extend my gratitude to respectable Sir Bilal for arranging sort of activities, right? And today, this activity which has been arranged and you all waited for this week, for the person who is among us, I would be also really grateful, and I think I would have no words for thanking him that as we have here, and he gave us sort of the time that I would say would be costing $1 billion. So let me please call on stage the one and only, none other than Sir Aamir Khan, who has worked in Bollywood movies, who needs no introduction. If I, for example, think and choose and cream out words from my dictionary, from my vocabulary, so I would say that it would never go enough. So the person who we have invited here needs no introduction, who has worked in Bollywood movies, is still working on FM radios and on TV channels, and is a well-known face. So we'll be really grateful to him, and we're grateful to him. So let me please call on stage the one and only Sir Aamir Khan. Please put your hands together and give him a big hand. So, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। सर्दी लग रही है। अच्छा। So, thank you so much, first of all, for inviting me here for a motivational session. I would like to pay thanks to the administration of School of Elites, to Zamoon Core organization, and to My Hope of Spark, who are actually giving you the technical and linguistic support to move on in your world. So, आज का जो हमारा सेशन है, that is too much important. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए कि रियलिटी बेसिकली क्या है। रियलिटी, आप लोगों ने वर्ड तो सुना होगा सब ने, यस और नो? गुड। सो रियलिटी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या है, तो आप में से कोई एक मुझे जवाब दे पाएगा? व्हाट बेसिकली इज रियलिटी? एनीवन? रियलिटी, जिसको हम सच्चाई कहते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं और जिसको हम मानते हैं, दैट इज़ रियलिटी। अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि मैंने रियलिटी को क्यों चूज़ किया आज के सेशन के लिए। आप सब ने इस सेशन को काफ़ी गौर से सुनना है और ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? स्टार्ट मैं लेता हूँ एक मुहावरे से। मुहावरा है कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये सुना है सब ने? यस और नो? गुड। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, गधा आपका बाप हो सकता है किसी इंसान का? फिर भी हम लोग इस मुहावरे को यूजुअली यूज़ करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। ऐसा ही है, ठीक है? अब हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जहाँ पे किसी ने ये बात छेड़ी कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आया गधा इंसान का बाप हो सकता है? आया ये लॉजिक है? नहीं है। फिर भी लोग इस मुहावरे को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एक स्कॉलर था, उससे मैंने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लाइक अगर कोई सेंटेंस बोला जाता है, अगर कोई लफ्ज़ बोला जाता है, अगर किसी चीज़ का नाम है, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। सो वो बैठ गया और इंटरनेट पे उसने सर्च किया कि इस मुहावरे के पीछे क्या राज है। तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आई, और वो ये थी that this idiom has been derived from the Pashto words.
कि ये मुहावरा जो है ये पश्तो के अल्फाज से डिराइव्ड हुआ है बेसिकली। अब मैंने कहा पश्तो के कौन से अल्फाज हैं, तो किसी को कॉल की, मैंने कहा कि यार इस हिसाब से कोई मुहावरा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कौन सा मुहावरा है, तो उन्होंने कहा आप सब ने सुना होगा, खरपलार को खपल मतलब पे बार का। सुना है? खरपलार को और खपल मतलब पे बार का। देन आई वॉज थिंकिंग कि ये किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा, गधे को कैसे इंसान का बाप बना सकता है कोई। फिर क्या हुआ कि मैंने इस पर सर्च स्टार्ट की, इस मुहावरे पर, खरपलार का। इसके पीछे एक पूरी कहानी निकल आई। वो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। वो कहानी ये थी कि एक लकड़हारा जो है वो अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके जा रहा था गधे पे। तो वो लकड़ियाँ काटता, वो गधे पे लादता, फिर उसको लगाम से पकड़ के घर लेके जाता, वो लकड़ियाँ दोबारा से उधर जमा करता, फिर खाली गधे को इधर लेके आता, फिर उस पर लकड़ियाँ डालता। दूर बैठा एक बुज़ुर्ग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये बंदा इस गधे पर लकड़ियाँ डाल रहा है और लेके जा रहा है। तो वो आया, जब वो 2-3 पैरे उसने लगाए हैं, तो उसके बाद वो बुज़ुर्ग उसके करीब आया और उसको बोला कि ये गधा एक ऐसा जानवर है कि इसको अगर आप एक बार रास्ता दिखाओ तो वो उस रास्ते पे खुद ही आता जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब कहीं पे मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और वो मोहल्लों में आपने अक्सर देखा होगा गधों की एक लाइन जा रही होती है और वहाँ से फिर खुद ही आ रही होती है, फिर यहाँ से उस पर सामान डालते हैं और फिर वो इसी तरह सीन चलता रहता है। ठीक है? तो जाते जाते उस बुज़ुर्ग ने, अभी आपको पता चल जाएगा अच्छा कि हम लोग किस चीज़ को रियलिटी बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। जाते जाते उस बुज़ुर्ग ने जब उसको ये समझाया तो उसने जाते जाते उसको कहा कि खर पलार का खपल मतलब पे बार का। पलार का मतलब क्या है? रास्ते पे करो, और प्लार का मतलब क्या है? बाप। तो वो आगे जो ये मुहावरा चल रहा था तो पलार को सबने इकट्ठा करके प्लार बना दिया और इस तरह गधा जो है वो हमारा बाप बन गया। ठीक है? और ये क्या बन गई? रियलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि हम सब इसको मानने लगे, इसको फॉलो करने लगे। कुछ समझ आ रही है? ठीक है? कि रियलिटी कैसे बनती है। बेसिकली जितने भी दुनिया में दिमाग हैं, दुनिया में जितने भी दिमाग हैं, ये अलग अलग एक दुनिया है, अलग अलग एक दुनिया है। हम रियलिटी किसको समझते हैं? जो हम लोग ऑब्ज़र्व करें और जिसको हम फॉलो करना शुरू करें, दैट इज़ बेसिकली ए रियलिटी। तो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है रियलिटी एंड माइंड पर, कि रियलिटी का ब्रेन के साथ यानी हमारे दिमाग के साथ कितना कनेक्शन है। आप लोग ज़रा सोचें कि ये दुनिया है अभी बनी है, आपकी ये दुनिया अभी बनी है और आप उसमें पहले इंसान हो, आप उसमें पहले इंसान हो। किसी चीज़ का कोई नाम नहीं है, किसी रंग का कोई नाम नहीं है, किसी रंग की कोई पहचान नहीं है। इस दुनिया को आप कैसे इमेजिन करोगे? बिल्कुल स्पेस, किसी चीज़ का नाम नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। इवन आपको ये भी नहीं पता कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग इंसान कहते हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को भी किसी ने नाम दिया है और उस नाम को फिर बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है और उस फॉलो करने के बाद फिर ये एक रियलिटी बनी है कि जो इस तरह का शेप होगा वो क्या होगा? इंसान होगा। ठीक है? एक एक्सरसाइज करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली रियलिटी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ बोलता हूँ और मुझे आप लोगों ने उस लफ्ज़ की मीनिंग बतानी है। ठीक है? गुंडांटिस, इसकी क्या मीनिंग है? आपके माइंड में कुछ बना? कोई शेप, कोई विजुअलाइजेशन? यस और नो? गुंडांटिस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई विजुअलाइजेशन बनी? नहीं बनी। अब मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट फ्रेंड,
कोई विजुअलाइजेशन बनी? सबकी बनी? ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपके माइंड में किसकी इमेज आई बेस्ट फ्रेंड का? वी विल टेक ए ब्रेक, राइट? प्लीज़ इसको पॉज करें, या अजान हो जाए उसके बाद। ओके, तो आपके माइंड में किसकी तस्वीर आई जब मैंने बेस्ट फ्रेंड कहा? कामरान की तस्वीर आई। ठीक है। आपके माइंड में किसकी तस्वीर आई जब मैंने बेस्ट फ्रेंड कहा? हारून की तस्वीर आई। ठीक है। आपके माइंड में किसकी तस्वीर आई जब मैंने बेस्ट फ्रेंड कहा? हाँ, मुस्तफ़ा की तस्वीर आई। कामरान, हारून, मुस्तफ़ा, 3 इमेजेस आप लोगों के, मतलब 3 बंदों के माइंड में 3 इमेजेस विजुअलाइज हुए। ठीक है, 3 इमेजेस विजुअलाइज हुए। जब मैंने गोंडांटिस कहा तो क्यों आपके माइंड में विजुअलाइज नहीं हुए? ये भी बेस्ट फ्रेंड को कहते हैं। गोंडांटिस बेसिकली बेस्ट फ्रेंड को कहते हैं। लिथुआनियन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब मैंने वो कहा तो आपके माइंड में विजुअलाइज नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड तो कामरान और कौन? कामरान और हारून और मुस्तफ़ा आपके माइंड में विजुअलाइज हो गए। वाई? बिकॉज़ ये आपके माइंड की अपनी अपनी रियलिटीज़ हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको कहूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कामरान है तो ये कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए रियलिटी ये नहीं है, इसके लिए रियलिटी हारून है। ठीक है। सेशन के स्टार्ट में मैंने क्या कहा कि हर माइंड की अपनी अपनी दुनिया है। मेरा बेसिकली मकसद ये था, इसके माइंड की अपनी दुनिया है, उनके माइंड की अपनी दुनिया है और इनके माइंड की अपनी दुनिया है। जिस तरह इनके बेस्ट फ्रेंड अलग अलग हैं, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, उसी तरह हमारे गोल्स अलग अलग होते हैं। हमारे लिए सक्सेस की मीनिंग अलग अलग होती है, हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की मीनिंग अलग अलग होती है, हमारे विशेस अलग अलग होते हैं, हमारी डिज़ायर्स अलग अलग होते हैं, हमारी मोटिवेशंस अलग अलग होती हैं। तो हमारी दुनिया भी अलग अलग है। समझ आ रही है? पकड़ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है। सो रियलिटी को बेसिकली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। रियलिटी जिसको हम सच्चाई कहते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबके गोल्स अलग अलग होंगे। आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा। ठीक है। कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? और बाकी मतलब जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो क्या क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हो? ये मेड में जो ब्लू कैप वाले के साथ बैठा हुआ है। नहीं ये बिल्कुल। हाँ, आप जी, आपकी गोल्स क्या है? क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो। गुड। अच्छा, अब आप टीचर बनना चाहते हो और आप बैठ जाएं प्लीज़। और अगर आपकी सोहबत ऐसी बन जाए, मतलब कि आपके 5-6 दोस्त आ जाएं इर्द गिर्द आपके, ठीक है, और वो आपको कहे कि नहीं यार टीचर ना बनो, आप डॉक्टर बनो, टीचर ना बनो, आप पायलट बनो, टीचर ना बनो, आप इंजीनियर बनो, तो आपके माइंड पर एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपके माइंड पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ने आपको घेर लिया। और कहीं ना कहीं जब आप रास्ते में जा रहे होगे, या फिर खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए और आप उसके साथ हॉस्पिटल जाओ और वहाँ पर आप डॉक्टर को देखो, तो आप कहोगे कि यार टीचर तो मैं बनना चाहता था, लेकिन फ़लाँ दोस्त मेरा ठीक कहता है मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह जाके हमारे जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और जो हम करना चाहते हैं उसकी तरफ फिर हम लोग बढ़ नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि हमने अपने रियलिटीज़ को खुद डिसाइड करना छोड़ दिया है। हम जो देखते हैं हम अपनी नज़रों से नहीं देखते, हम औरों की नज़रों से देखते हैं। हम जो महसूस करते हैं अपनी नज़रों, अपने एहसासात से महसूस नहीं करते, औरों की एहसासात से
महसूस करते हैं। ठीक है, आपको पता है सर्दी गर्मी ये हमें क्यों लगती है? हम सर्दी को सर्दी क्यों कहते हैं और गर्मी को गर्मी क्यों कहते हैं? अगर स्टार्ट से दुनिया जैसे बनी और जैसी चीज़ों के नाम रखना लोगों ने शुरू किए, ठीक है, अगर उस दिन बारिश का नाम सूरज होता तो आज हम क्या कहते कि बाहर सूरज हो रही है, ऐसे कहते हैं ना कि बाहर बारिश हो रही है तो हम क्या कहते? और अगर आज मैं कहूँ कि बाहर सूरज हो रही है तो सारे लोग मुझे पागल समझेंगे, ऐसा ही है, कहते ये सूरज तो नहीं है, ये तो बारिश है। वजह क्या है? क्योंकि ये बारिश ये रिपीटेडली रिपीट हुए हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने इसको फॉलो किया है और उस फॉलो करने के बाद ये हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट हो गई है कि जब बूंदें आसमान से गिरेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? बारिश कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही नाम स्टार्ट से सूरज होता तो आज सूरज की बूंदें बरस रही होती। समझ आ रही है? सेम हमारी लाइफ का मकसद जो होता है, हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो सक्सेस पॉइंट होती है, वो हम अगर अपने लिए खुद डिसाइड ना करें, अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक खुद डिसाइड ना करें, तो हम दुनिया में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, जिसको हम अनसक्सेसफुल कहते हैं। अनसक्सेसफुल बंदा कौन सा होता है? जो चाहता कुछ और है, करता कुछ और है, बनता कुछ और है और पाता कुछ और है। समझ आ रही है? जब आप बच्चे होते हो तो आप क्या बनना चाहते हो? वही जो आपके माँ बाप आपको कहते हैं। जब आप थोड़े से बड़े होते हो, जब आप सोसाइटी में आते हो तो आप क्या बनना चाहते हो? वही जो सोसाइटी आपको देखना चाहती है। जब आप इंटर लेवल से आगे जाते हो तो आप क्या बनना चाहते हो? वही जो आपके दोस्तों की राय होती है, वही जो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, तो आप उनके कंपटीशन में आ जाते हो। जब आप उससे आगे जाते हो और आपको पता चलता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो आप किसी और फील्ड में चले जाते हो। फिर जब जॉब्स की बारी आती है तो जॉब में हम लोग टेस्ट किसी और चीज़ में दे देते हैं, किसी और फील्ड में दे देते हैं। ठीक है, और फिर हम वो बन जाते हैं जो हम बनना ही नहीं चाहते। तो फिर हम क्या करते हैं? लाइफ को काटने लगते हैं, ज़िंदगी को काटने लगते हैं। असल इंसान कौन सा है जो ज़िंदगी को काटता नहीं है? पिछले सेशन में भी अगर किसी ने देखा हो, या मेरी टीम तो यहाँ पे मौजूद है, पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि ज़िंदगी को काटो मत, ज़िंदगी को जियो। एक है ज़िंदगी को काटना। काटना वो होता है जो आपके कोई गोल्स ना हो, आपको कोई किसी रास्ते पे भी लगा दे, आप उस रास्ते पे लग जाओ। जीना क्या होता है? आपने जो चाहा, आपने वो पढ़ा, आपने वो किया, आप वो बने और आपने वो पाया। दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल। ठीक है, अब इस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये पॉइंट है। ठीक है, हमें तो पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? रियलिटीज़ है, और ये हम करेंगे दुनिया में और ये हम जगह जगह देखेंगे। बट रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कैसे हमें अपने उस पॉइंट तक जाना है जिस पॉइंट तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना है, साबित कदम रहना है। दैट्स द मेन पॉइंट। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमें कैसे साबित कदम रहना है। समझ पा रहे हो? किसी का ऐसा गोल हो जो उसने बचपन में सोचा था और अभी तक वही हो, अभी तक किसी का नहीं है जो बचपन में सोचा था और अभी तक वही हो। नहीं है। वजह क्या है? कि हम लोग अपनी रियलिटीज़ को दुनिया की नज़रों से देखते हैं। हम रियलिटी को नहीं, बेसिकली हम इल्यूजन को देख रहे हैं। ठीक है, हमारी आंखों पर ग्लासेस लगी हुई हैं, डिफरेंट कलर के ग्लासेस लगी हुई हैं। जिस बंदे के आंखों पे जिस रंग की ग्लासेस लगी हुई है, उसको दुनिया उसी रंग की नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम सब उन ग्लासेस को उतार दें तो सबको दुनिया एक ही रंग की
नज़र आएगी। ऐसा ही है ना। अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमें अपने गोल्स या अपनी रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू पीपल। ये ना मैं आपको बता सकता हूँ ना आपको कोई और बता सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्या कहा कि हर इंसान, जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर आज इस सेशन में बैठे हुए हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स जैसे अलग अलग हैं ना, उसी तरह इनके गोल्स, इनकी सेटिस्फेक्शन, इनकी हैप्पीनेस, हर एक चीज़ अलग अलग है। जिस तरह आपके बेस्ट फ्रेंड अलग अलग हैं, उसी तरह आपकी रियलिटीज़ और आपके गोल्स भी अलग अलग हैं। लेकिन हमें जस्ट उस पर कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, साबित कदम रहने की ज़रूरत है। और वो साबित कदम हम तब रह सकेंगे जब हम लोग हार को भूल जाएं, जब हम लोग हार को भूल जाएं और हार से सीखें। क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ लोग आते हैं और आपको कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, आप कभी भी ये नहीं बन सकते। ठीक है, इसी तरह होता है या नहीं? अच्छा, जागे हुए हो। तो जब डिफरेंट लोग हमें ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, ठीक है, तो हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? तो जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम उस एंगल में सोचने लगते हैं, तो वो काम फिज़िकली हमसे फिर नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे माइंड में है कि मैं इस चेयर को उठा के वहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और बिलाल साहब आते हैं और मुझे कहते हैं कि आमिर आप इसको उठा नहीं सकते, आप इसको कभी भी नहीं उठाओगे। यासिर आके मुझे कहता है कि ये तो काफ़ी भारी है, ये आपसे नहीं उठेगी, ठीक है, और मैं इधर ही खड़ा हूँ। अब्बासी आता है, मुझे कहता है कि मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा, और मैं इधर ही खड़ा हूँ। और मेरे माइंड में सिर्फ ये नहीं 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 घूमता रहता है, ठीक है। और इस नहीं नहीं के बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं ये चेयर उठा के वहाँ पर नहीं रख सकता। मुझे करना क्या है कि ये भी मुझे नहीं कहे, वो भी नहीं कहे, वो भी नहीं कहे, लेकिन मैं यहाँ से जाके इस चेयर को उठा के ख़ुद तो देखूँ कि आया ये मुझसे उठती है कि नहीं उठती, आया मैं इसको लेके जा सकता हूँ कि नहीं लेके जा सकता। हम इस चक्कर में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ख़ुद उसकी तरफ एक कोशिश भी नहीं करते, उस चीज़ को करने की हम कोशिश ही नहीं करते कि हम जाके इसको उठाएं तो सही, इसको लेके तो जाएं सही, फिर देखेंगे कि हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। ऐसे में जाके हमें कोई कहे कि यार मेडिकल मुश्किल है, आप एंट्रेंस पास नहीं कर पाओगे, हम भी यही सोचते हैं। रिज़ल्ट देखते हैं, भाई 1000 बंदा फेल हो गया, इन 1000 में से मैं भी वो हूँगा। भाई ये तो सोचो, ये 5 पास हो गए, इसमें से भी मैं हो सकता हूँ। हम नेगेटिव सोचते हैं। माइंड आपका जो है ये आपके हाथ में है। मैं अक्सर कहता हूँ कि योर माइंड इज़ अ किड। आपका जो माइंड है ये किड है, बेबी है, इसकी आप जैसे तरबियत करोगे ये वैसे ही बड़ा होगा। और दुनिया में मैं आपको एक और हकीकत बताता हूँ, दुनिया में नाकामी है ही नहीं, नाकामी हम में है, नाकामी हमने बनाई है। जैसे रियलिटीज़ को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वैसे ही नाकामी को भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और वैसे ही उस नाकामी को कंस्ट्रक्ट करके हम कामयाबी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हवाई बातें हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हवाई बातें होती है, नाकामी है, नाकामी होती है, और कैसे कंसिस्टेंट रहा जा सकता है, ये वो फ़लाँ 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 फ़लाँ, ठीक है। नाकामी को कामयाबी में और एक छोटे से इलाके से गूगल तक का सफ़र मैंने तय किया है। आई बोर्न इन अ विलेज नेम्ड तरखा। किसी ने सुना है?
ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। बहुत ही बैकवर्ड गाँव है, बहुत ही बैकवर्ड गाँव है, ठीक है। मेरी पैदाइश वहाँ पर हुई थी। स्टार्ट में फैमिली पर कुछ ऐसे वाक़यात आए, कुछ ऐसे वक्त आए जब सर्वाइवल मुश्किल था, पढ़ना मुश्किल था, काम करना मुश्किल था, ठीक है। आई सपोर्टेड माई एजुकेशन फ्रॉम क्लास 4 टिल MPhil। कोई भी आप में से ये सोच सकता है कि एक बच्चा अपने एजुकेशन को ख़ुद सपोर्ट करे और वो जो कि 120 रुपए की फ़ी जमा नहीं कर सकता, वो आज 80,000 रुपये फ़ी ऐसे जमा करता है। Nobody can think। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। Why I have supported myself? मैं कंसिस्टेंट क्यों रहा? क्योंकि मैं देखता था, इर्द गिर्द लोगों को देखता था। मैंने अपने लिए रीज़न्स बनाए, पर्पसेस बनाए, गोल्स बनाए कि आज तो मैं ये हूँ, कल मैंने ये नहीं होना। फिर कल जो था, आज तो मैं ये हूँ, कल मैंने ये नहीं होना। और पहुँचते 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 वो बच्चा जो कि चारसद्दा के बाज़ार में एक छोटी सी दुकान में जूते पॉलिश करता था, आज गूगल पे उसका नाम है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप में से हर एक कर सकता है। फ़र्क सिर्फ कितना है कि हमें अपनी रियलिटीज़ को ख़ुद डिसाइड करना है, हमें अपनी लाइफ को ख़ुद डिसाइड करना है, हमें अपने गोल्स को ख़ुद डिसाइड करना है, हमें अपने बर्निंग डिज़ायर्स को ख़ुद उजागर करना है और हमें ख़ुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे लर्न करना है। मेन चीज़ जो लाइफ में है वो आपकी गलतियों से लर्निंग है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो और उनको सुधारने की कोशिश करते हो, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक ऐसे मुकाम पर होंगे, जब आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर होंगे कि लोग आपको आपके नाम से याद करेंगे। बल्कि ना सिर्फ आपको आपके नाम से, बल्कि आप जहाँ 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 से गुज़रे हो वही जगह आपकी नाम से याद होगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को ये अब हवाई बातें लग रही है? कोई रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? खुद, किसी और की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से। एक और चीज़ है, हम लोग रुकते कब हैं? अब ये पॉइंट है, जब हमारी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई सिवियर सॉरो, कोई सिवियर गम मिलता है, तो वो गम हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। जब हम कुछ हार जाते हैं, कुछ ऐसा हार जाते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ ऐसा हार जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी होती है, तो हमारी ज़िंदगी वहीं पे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। बट यहाँ पे भी हमें एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। जिस तरह हम गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उस तरह हमें ये रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि दुनिया में लोग आते नंबर पर हैं, जाते बिना नंबर के हैं। दुनिया में मिलती आपको चीज़ें खुद ही है और आपसे जो है छिनती भी खुद ही है। दुनिया में आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसको आप गेन भी कर सकते हैं और उसको आप लूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो 2 काइंड ऑफ थिंग्स से कंसिस्ट की जाती है। नंबर 1 गेटिंग, नंबर 2 लूजिंग। नंबर 1 हैप्पीनेस, नंबर 2 सॉरो। ये अपोजिट चीज़ें हैं जिसकी एक्सेप्टेंस अगर आप में हो तो आप दुनिया में, ज़िंदगी में कभी भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर ये चीज़ मुझसे गई है तो कल मैं इससे बेहतर चीज़ हासिल कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ मैं हार चुका हूँ तो कल इसको ही सबक बना के इससे अच्छी पोजीशन में हासिल कर सकता हूँ। तो दुनिया में, ज़िंदगी में कभी भी आपको अगर आपके कोई प्यारी, कोई इंतहाई आपके करीब चीज़ आपसे छिन जाए, उसको आपने अपनी मोटिवेशन बनाना है। हम क्या करते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। फिर अगर मैं आपको कहूँ कि ज़िंदगी में हम क्यों जीते हैं,
क्यों हम लोग जी रहे हैं दुनिया में? फॉर हैप्पीनेस और फॉर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सक्सेस हमें चाहिए क्यों? ताकि हम सेटिस्फाई हों और खुश हों। ठीक है, जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो हमें क्यों चाहिए? ताकि हम सेटिस्फाई हों या खुश हों। ठीक है, तो जब हम लोग उस चीज़ को हासिल करने, उसको सबक बनाएंगे अपने लिए जो हम हार चुके हैं, ठीक है, उसको सबक बनाएंगे जो हम हार चुके हैं, उससे बेहतरीन चीज़ को फिर ढूंढने में लग जाएंगे जो हम लॉस कर चुके हैं, जो हम हार चुके हैं। और जब आपको उससे बेहतरीन चीज़ मिले तो तब आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे या तब आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे? तब ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। एक लास्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में हम हज़ार चीज़ों के पीछे जाते हैं, ये रियलिटीज़ कंस्ट्रक्ट हुई हैं, ये हमारी सोसाइटी में जो है आपके माइंड में फीड की जाती है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, आप अनसक्सेसफुल हो, आप नहीं कर सकते, फ़लाँ 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 फ़लाँ। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग दिमाग पे सवार कर लेते हैं और या तो हम सेटिस्फेक्शन के लिए सही रास्ता इख्तियार करते हैं या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। गलत रास्ता ये है कि नशों में लोग लग जाते हैं, सही रास्ता ये है कि उसी हार को अपना सबक बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी हार को सबक बना के ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। और ये लोग जो हार से सीख के इन जो टेम्पररी प्लेजर्स हैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, उनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती, कोई भी ताकत नहीं रोक पाती। लास्ट जो चीज़ है, आपको मैं एक हल बताता हूँ। जब भी आप ज़िंदगी में कुछ भी हारो या किसी भी चीज़ से आप दुखी हो या आपको लगे कि यार ये क्या मेरी लाइफ में हो रहा है और मैं तो सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान हूँ, और बस टाइम हम लोग कहते हैं ना, हमें ये नहीं मिला और हमसे ये छिन गया और ये और वो, और मैं तो काफ़ी बदनसीब इंसान हूँ। अब एक चीज़ सोचो, एक चीज़, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी है और ज़िंदगी के लिए सबसे कीमती चीज़ आपकी सांसें हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही है आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आपकी ये सांसें गई तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक सांसें चल रही है आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। एग्जाम्पल दूँ? ओके, कौन वॉलंटियरली खड़ा होगा? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यस प्लीज़। आपने हाथ उठाया है ना? अच्छा, आसान क्वेश्चन है, खैर है, डरो मत। एकेडमिक क्वेश्चन बायोलॉजी फिज़िक्स का नहीं पूछ रहा, मुझे खुद नहीं आते। अच्छा, आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आप मुझे अपनी आंख दोगे? 10 करोड़ देता हूँ, 700 बिलियन डॉलर्स देता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ये देख सकता है, सिट डाउन, इससे ये देख सकता है, ये 100 बिलियन डॉलर्स पे भी एक आंख नहीं दे रहा। अब ये मैंने सिर्फ एक आंख की बात की है, आपकी 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, दांत है, ज़ुबान है, हाथ है जो सही सलामत है, दिल है और ऑर्गन्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि बिल गेट्स अमीर है या आप अमीर हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप अमीर है, क्यों? क्योंकि आप सही सलामत हो, आपकी सांसें चल रही है, आपकी आंखें ठीक है, आपके कान ठीक है, आपके हाथ पाँव ठीक है, और आप ज़िंदगी में वो कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बट ज़रूरत किस चीज़ की है? कंसिस्टेंसी की। अपने गोल्स पर डटे रहो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दैट्स ऑल। शुक्रिया सर। स्टूडेंट्स, सर आमिर खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे साथी भी हैं।
जब भी हमारे साथ इस तरह की कैप आती है स्टूडेंट्स की, जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और जिनको इस बात की ज़रूरत होती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी को फॉलो कर सके, किसी के बात को फॉलो कर सके। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमें सुधारने वाले बहुत कम लोग हैं। सीधा रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हालांकि आपके इर्द गिर्द जितने साथी होते हैं, बड़े होते हैं, ज़्यादातर हम बच्चों के जो है स्टूडेंट्स के माँ बाप काम काज में बिज़ी होते हैं और ये सारा दिन में कोई 10 से 20 मिनट भी अपने माँ बाप के साथ नहीं गुजारते, तो बेरारूई का शिकार हो जाते हैं ज़्यादातर। तो आमिर ख़ान साहब जैसे लोगों की बदौलत इन ही यूथ को एक सीधा रास्ता और अच्छी और पॉजिटिव सोच मिलती है, उनमें मोटिवेशन पैदा होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सके, इस माशरे के लिए बेहतरीन फ़र्द बन सके और इस माशरे में अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सके। तो इंशाल्लाह आप कंट्रीब्यूशन करोगे ना? इंशाल्लाह। सर ने जितनी बातें की है इस पे अमल करेंगे ना? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टीम का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक दफ़ा क्लैप। मेरा नाम अहमद बिलाल है। मैंने इस सेक्शन से ये सीखा कि हमें हमेशा अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और दूसरों की राय नहीं सुनना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इस तरह की सेक्शन स्कूलों में भी और इस तरह की हॉस्टलों में भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे सेशन होने चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एक इंसान जब हार जाए ज़िंदगी में वहाँ पर ही रुकता है। बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव सोचते हैं, दूसरे पर बोझ डालते हैं, इसलिए ऐसे सेशन होने चाहिए। अभी में हमने बहुत कुछ सीखा है कि ज़िंदगी में इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात है कि आज हमने बहुत कुछ सीखा, हमने इंजॉय भी किया है और सर के हमें बात बहुत अच्छी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस तरह के सेशन अरेंज किया हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के सेशंस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो सोसाइटी है, ये लोग तो एजुकेशन सीख रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी गोल्स का नहीं पता कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, आया मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो आज जो आमिर सर ने जितने इनको बातें बताई, उनको इतनी गोल स्कूलिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम बच्चे ने आके हमें बताया कि सर इस तरह की जो सेशंस है अगर कम से कम हर सैटरडे पे नहीं तो तकरीबन मंथ में 2-3 मरतबा होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह की मोटिवेशन उनको दें और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिस तरह के आमिर सर ने बनाई है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक प्रॉपर चैनल मिल जाएगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ और ये मेरे गोल के लिए ज़रूरी है।